From ancient time itself, when the civilization was developing itself, from there itself, this engineering has started, and that is nothing but that's why people used to call the civil engineering the mother of all engineering. But the civic behavior of the public is what is important. तो सिविल का साथ सिविक होना जरूरी है. If you have to classify civil engineering in different specializations. One is the transportation engineering, structural engineering. Next हो गया आपका geotechnical engineering, environmental engineering, और एक आएगा आपका building science. If you go to the developed country, they have proper monetary system, they have proper maintenance systems are there. So आपको मिलेगा कि वहाँ पे फोटोज नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत Basically, even in the, all these developed countries, corruption तो वहाँ भी होता है. See, machines को आप ये monitor करने रख देगा ना, तो machines don't lie. तो वो तो human beings में तो problem होता है ना. Unfortunate earthquake जो South Asia में हुआ था, उसमें if you have seen Myanmar में और Thailand में बड़ा बिल्डिंग बच गया, then थोड़ा building ना वो गिर गया. खत्म होते गया. This is pure science only, no? जैसे चाइना सुनते हैं ना 10 दिन 15 दिन में एक बड़ा बिल्डिंग बना दिया. कैसे बनाते हैं उनको? प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है, वो जस्ट उठा के लेके जाता है और हमें फिट करते हो. मिस्त्री को देने वाला जो बिल्डिंग है, कितना बिल्डिंग है जो 100 ईयर्स सस्टेन किया कि फॉर सम टाइम अगर सिविल इंजीनियर्स काम करना बंद कर देगा तो देश का क्या होगा. 100 लोगों ने अगर उसको एग्री किया है, पीयर रिव्यू किया है, जिसमें से लेकिन एक ने भी मना करे तो वो बेकार हो गया. वो बेकार, क्योंकि 100 वर्सेस 1 उसमें डेमोक्रेसी नहीं चलता. एक ने भी प्रूफ कर दिया गलत है, ये गलत है तो गलत है. तो वो टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा. आप पॉलिटिशियंस हो या कोई भी हो प्रेशर देगा, सिविल इंजीनियर कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. Dr. Devendra Pal, Hello, Associate Professor in the Department of Civil Engineering. How are you, sir? I am fine. What about you? I'm fine, sir. तो Yeah. आपको मैं बुलाया हूँ, सिंपल रीजन है, आई वांट टू नो अबाउट सिविल इंजीनियरिंग. क्योंकि वो मेरा एरिया नहीं है. मुझे बस पता है कि सिविल इंजीनियरिंग ये करता है, वो करता है, पर उसका फिलोसफी और साइंस मुझे नहीं पता है. No, I am also excited. Let us see how much I can make your audience understand about civil engineering and how people take this in a positive way. That yes, civil engineering is basically made for the nation because these civil engineers develop the nation. Let us see how we can prove that today. Okay, so we have started with this statement given कि civil engineers make the nation. Make the nation. उसको concluding remarks हम देखते हैं. Do we reach there? Yes. रास्ता अभी शुरू करते हैं. Yes, let us see. Can we reach on? Okay. तो पहला सवाल तो ये है कि sir, it is said that civil engineering is the oldest engineering branch. For that matter, some people call it either mother or father of engineering. Yeah. वो सच बात है क्या? It's very true. ये सही है क्योंकि जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रहा था तभी से हमको शेल्टर का जरूरत पड़ा, तभी से हमको रोड का जरूरत पड़ा, तभी से हमको वाटर सिस्टम्स का जरूरत, वाटर सप्लाई का जरूरत पड़ा, तभी से हमको गार्बेज सिस्टम्स को मैनेजमेंट करने का जरूरत है. ऑल द व्हाट एवर द डेली लाइफ वी डू दैट बेसिकली कम्स फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग. इफ यू वांट टू ट्रेवल फ्रॉम योर प्लेस टू योर वर्क प्लेस, what mode you are using? You are using a transportation mode. So that is coming from civil engineering. So this civil engineering has actually basically started at the ancient times when people were not realizing that there is something called engineering. But from that time itself, people have started working it. Slowly, the things came in scientific way, and then it comes in terms of an engineering, and that comes the first one is the construction part, that is the civil engineering, and then later on, all other engineering like mechanical, electrical, and complex, all this comes. So from ancient time itself, when the civilization was developing itself, from there itself, this engineering has started, and that is nothing but that's why people used to call the civil engineering the mother of all engineering. Mother, okay. Yes. Okay. Yeah, now I get the point. Civilization को मैं कभी civil word से जोड़ के नहीं देखा था. Civilization. Yes. इसमें civil word है ना? Yes. You can take that way also. A civilization is developed from on the point of civil engineering itself. Sir, but then if you have to have a very bookish definition, मतलब theoretical adequate definition, आपने तो जो बोला वो तो like everyone understands, it's a overarching definition. But किसी को अगर एग्जाम में पास करना है, what is civil engineering एक लाइन में, तो आप क्या बोलोगे? Civil engineering basically the part of engineering which deals with the constructions of any structures. Construction of any structure. Yes, construction of any structure is basically dealing with through this civil engineering. No, I mean structure तो कुछ भी हो सकता है. ये this is a structure. This is a structure. But ये civil engineering में कैसा I am talking about the structures
which are required for our shelters, for मतलब वो mode of transportations, for water planning system. मतलब पब्लिक का स्ट्रक्चर Yes, public, any kind of public structures that is developed. जैसा ये तो पब्लिक के लिए नहीं है, मेरा लिए है. Yes, it's a हाँ. personal. इट्स पर्सनल. ओके, तो पर्सनल वाला सिविल में नहीं आएगा. Yeah, personal is not civil engineering. But if you generally talk about the structures, then mainly we talk about the buildings, bridges, roads, dams, canals. All these are mainly coming under the structures. No doubt, this is also a structure. But in a broad sense, if we talk about, then this is not coming in the structures. No doubt, this cups and anything. If we talk about, these are also a part of culture. But in a broader sense, when we talk about the structures, it's basically the structures which are made of cement, concrete, sands, and all those things. तो यू आर ऑलमोस्ट टॉकिंग अबाउट परमानेंट स्ट्रक्चर्स. Yes, permanent. क्योंकि बिल्डिंग्स परमानेंट होना चाहिए, ब्रिजेस परमानेंट होना चाहिए. Yes, permanent. जो ऑलमोस्ट मूव नहीं करता है, स्टैटिक स्ट्रक्चर्स जो है ना, मूव करता है, मतलब दे आर नॉट मोबाइल. They are not mobile, mobile structures. सर, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा बताइए, 2 मिनट में. I did my BTech from NIRIST itself. नेक्स्ट. Yes, वाओ. in civil engineering. Then I did MTech in transportation engineering from IIT Guwahati. And then I did PhD again in transportation engineering. Specific area is traffic engineering from IIT Guwahati itself. So you are a specialist in transportation engineering, and more precisely, now you said traffic engineering. Yes, traffic engineering, which mainly deals with the movement of traffic on highway. So it sounds to me more like a statistical stuff, like कि इसमें ट्रैफिक का मूवमेंट अगर स्टडी कर रहा है, तो उसमें आप स्ट्रक्चर कहाँ बिल्ड कर रहे हैं? आप नहीं बिल्ड कर रहे हैं ना उसको. If you talk about my specialized area of research, हाँ. then no doubt it is a traffic engineering. हाँ. But my background of my basic degree is from civil engineering. Understood. I am a civil engineer. First of all, I am a civil engineer. Because suppose if you take an MBBS, you go with a patient with a fever, he can give medicine. Right. If you go a patient with a small headache or anything, he can give medicine. Means MBBS knows almost all about the medicine. Like civil engineer also, you know about all about the civil engineering. So the basic part, yes, it is not. But if you talk about something specialized, when a part of research comes, then yes, my area of research is the traffic engineering. तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होता. Traffic engineering is not actually construction. हाँ, वही. Traffic engineering is specifically the planning and design and movements of the traffic. How efficiently you can design the traffic movement so that the delay is minimum, accidents is minimum as much as possible. That is specifically dealing with the traffic engineering. So you are also part of developing the nation, because traffic. Civil engineers. No, that's there. That is there. We are already there. But as a traffic engineer as well, Traffic engineers also as well. all the logistics move through roads All on the them. logistics most is coming from traffic engineering. So the traffic engineers are basically giving the smooth movements of a city. But in reality, if you see, it's really difficult. If you compare the cities like Bangalore, Delhi, you go, it's very difficult nowadays to manage the traffic, because the number of vehicles, the affordability of buying vehicles for the people is now, it is like getting a water bottle. Everybody can buy a 4-wheelers, 2-wheelers. So it is very, because our infrastructures are limited. So with limited infrastructures, the management becomes difficult. That's why sometimes we find that traffic is just congestions, because with respect to the number of infrastructures, whatever we have, specifically the transportation infrastructures, the number of vehicles are. So do you mean, sir, like if you are given, let's say you are being made the mayor of Bangalore, Yes. and you are a traffic engineer yourself, Yes. तो आप ठीक नहीं कर पाओगे. Will your engineering field there? Yes. No. It is possible. Okay. But efficient way we have to implement it. Okay. Because sometimes what we do, we design in our papers, but implementation become difficult. So suppose traffic signals we talk about. So we have automatic traffic signals. It has been designed. It has been implemented, said today. But after 5 years, what happened? The number of vehicles on that particular road has increased. So what we need to? You need to improve that traffic signal, but we are not doing it. Since we are not doing it, so what happens? It is creating congestions. Because whatever you have designed, maybe 5 years or 10 years back, that was for a particular number of vehicles. Now your vehicle is increased. Vehicle dynamics has changed. Earlier, suppose you have only
motorcycles. Now the same motorcycle is a different version, different way they are moving. Suppose earlier we have Maruti 800 car. Now we have car, but we have different varieties of cars. So you These we need to consider. so You need to improve it. So I give you a situation where you're the mayor of the particular city. You have the power to implement these policies as well. So is it possible or not to, let's say, okay, sir, the best traffic that I've seen, most efficient traffic that I've seen, me personally was in Seoul, South Korea. Yes. I mean, it felt like I was in some simulated city. A bus comes, bus stays, bus leaves. There are also too many vehicles on road, just like Bangalore. But nothing stops. There's no congestion anywhere. Yes, that is one is the design part. Second part is the implementation. Third part is the discipline. How disciplined we are as a rider. Are we following the same discipline, whatever has been implemented by the mayor or whoever with the city planner? Because what we are doing, I need to buy, say, one vegetables. I'm just parking on the road itself. So it's creating trouble to the other vehicles who are coming. Right. So they have to divert. So they have to divert when little bit congestion starts, then delay start. Similarly, I have kept it on the road. Somebody will come with a four-wheeler. He is also keeping the same vehicle on the road itself where he is not supposed to keep. So that creates the trouble. So basically the discipline. Main problem is the discipline that we do not have. Because of that, the lot of congestions are occurring. I understood. What you are saying is civil engineers will build a system. Traffic engineers can manage. Can create a system that will, let's say, ascertain a fluid flow in the traffic. But the civic behavior of the public is what is important. तो सिविल का साथ सिविक होना जरूरी है. So yes. तो सर कमिंग टू द रोड पाथ, ऐसा क्यों होता है कि some roads last for a lifetime and some roads develop for potholes just like that? Yes. This answer actually, several reasons are there why potholes and all those things developed. First of all, as a civil engineer or transportation engineers, they are designing it and handing over to the concerned authority who are implementing it. Now the concerned authority is Example like बोलिए ना. Suppose the designer of transportation engineer, it was given him some money, let him design a road infrastructure for that particular part. So what you will do, you collect some soil data, you will collect the traffic data, and based on this, he will design the different layer of the roads. ये engineer करता है. Yeah, engineer करता है, and he will recommend it that okay, this type of material is to be used. Okay. And then he will give it to the concerned agency. Like You mean contractor? Not contractor, because it's a PWD. Oh, okay. PWD is taking Executive जैसे. road construction. So they will hand it over to the PWD. Now PWD will call bid, and then the work will be given to some contractor. Okay. That contractor can be a multinational contractor, also multinational agency also, Local भी हो सकता है. or local person can. Now the questions comes, suppose the engineer has recommended A class aggregates or some higher grade of aggregate it was recommended. Now question is, what grade of aggregate was used in the field? That is one part I am talking about. That is one part. So whether those aggregate, whatever the shape, size, whatever the quality was required, whether that was used in the road, that is very difficult to check. Means nobody is checking. Not difficult, Okay. but it is not being checked properly. So before you proceed, आपने बोला कि engineers design and kind of find the materials जो चाहिए उस particular based on the traffic flow. Yes. वो engineer कौन है? मतलब PWD का engineer है कि कोई और engineer है? Because you brought PWD after that. Sometimes PW engineers भी करते हैं खुद, but sometimes वो क्या करता है, हायर किया हुआ कुछ कंसल्टेंट होते हैं. Consultant. वो कंसल्टेंट उसको डिजाइन करके देते हैं. Okay, now I understand. तो किसी एरिया में PWD इंजीनियर खुद भी करते हैं. तो let us take it linearly. Consultant से consult करके ये project में उन्होंने design करा दिया. It's a third party. Yes, third party. And PWD department उसको implement करेगा. तो वहाँ का जो engineers है, जो भी civil engineers है, उसका रोल कहाँ पे आता है? उसका रोल्स आता है जब कॉन्ट्रैक्टर को वर्क दिया गया है, कॉन्ट्रैक्टर जब उस फील्ड में काम कर रहा है, they have to execute it. Who executes it? Contractor? No. Those engineers. तो contractor क्या करता है?
कॉन्ट्रैक्टर तो इम्प्लीमेंट करता है, कंस्ट्रक्शन करता है। तो एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन में क्या फर्क? आई थिंक एग्जीक्यूशन मीन्स आपको जाके देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्टर आपका जो रिकमेंडेड क्वालिटी है, रिकमेंडेड मटेरियल्स है, हाँ। रिकमेंडेड डिजाइन थिकनेस है, क्या कॉन्ट्रैक्टर वो फील्ड में इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अच्छा, तो मॉनिटरिंग बेस मॉनिटरिंग बेसिकली मॉनिटरिंग करना पड़ता है इंजीनियर्स को जाके। तो कभी कभी इंजीनियर्स मॉनिटर करते नहीं, कभी कभी हो सकता है कि सपोज एक जूनियर इंजीनियर्स को भेज दिया, ही इज ए डिप्लोमा होल्डर, ही मे नॉट बी नेइंग ऑल क्वालिटी कैसा होता है। यस यस यस, या में टेक्निकल एक्सपर्टीज आ जाता है। उसका इसमें क्या होता है, थोड़ा सा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने का। आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स डू क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज, दैट देयर इज ए पॉसिबिलिटी यू कैन रूल आउट, हो सकता है। cannot rule out. That is one of the reason. Second reason है, suppose if you take the examples of Itanagar area, we have heavy rainfall. Well, you can say around 7 months rainfall is there. Because of that, water storage हो रहा है रोड का ऊपर, रोड का साइड पे ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है। लैंडस्लाइड का बड़ा प्रॉब्लम्स होता है, लैंडस्लाइड हो जाता है। सपोज मिट्टी क्लियर किया बट कुछ पार्ट में मिट्टी रह गया, सो क्या हो गया, पानी स्टोर हो रहा है वहाँ पे। वो पानी क्या होता है, सरफेस का अंदर में जाता है, सरफेस के अंदर जाता है। ये सो पानी सरफेस के अंदर में जाएगा, आपका रोड का डिफाइंड लेयर में जाएगा। रोड का जो सबग्रेड लेयर होता है, जो सॉइल लेयर होता है, वो सॉइल लेयर को डिटोरेट करता है। सो अल्टीमेटली क्या होता है, बॉटम में क्रैक डेवलप होता है, वो क्रैक स्लोली स्लोली ऊपर में आ जाता है। दैट इज वन वे। सेकेंड वे कि जो बारिश इतना ज़्यादा होता है तो क्या होता है, पानी अगर ऊपर में स्टोरेज हो गया, क्योंकि अगर रोड सरफेस बहुत अच्छे से नहीं कंस्ट्रक्ट किया कॉन्ट्रैक्टर ने, तो क्या हो जाएगा, जो भी वर्क किया है तो वहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है। वो पानी धीरे धीरे नीचे जाता है। एंड उसके ऊपर क्या होता है, हमने जब रोड डिज़ाइन किया, हो सकता है जो इंजीनियर ने डिज़ाइन किया है वो घर में बैठ के एज्यूम कर लिया कि इस रोड में यही मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स जाएगा, उसका मैक्सिमम लोड इतना होगा। बट इफ यू टॉक अबाउट द इंडियन कंडीशंस, मोस्टली यू कैन से 50-60% व्हीकल्स जो क्या होता है, ओवरलोडिंग होता है। अगर हमारा एक व्हीकल्स में लोड लेने का कैपेसिटी ओके, टन, दे आर टेकिंग 15 टन्स। सो वो जो ओवरलोडिंग का जो इम्पैक्ट है, वो एक्चुअली डिजाइन में कंसीडर नहीं किया गया है कि ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। तो मतलब सपोज मेरा 5 सीटर गाड़ी में मैं 7 लोगों को ले गया था, आपका गाड़ी से कुछ इफेक्ट नहीं होता है। इट इफेक्ट इज कमिंग फ्रॉम द हैवी ट्रक्स, और वो जो गुड्स कैरी करता है, अच्छा इफेक्ट है। आपका गाड़ी में 5 के जगह में 7 लेने से रोड में कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, गाड़ी को कंसीडर ही नहीं किया जाता है डिजाइन करने के लिए। ओ रियली? यस, औकात ही नहीं है। वो ट्रक का लोड को, ट्रक का एक्सेल लोड को कंसीडर करके डिजाइन किया जाता है। उसमें हैवी लोड्स आता है। तो कभी कभी क्या होता है, लोड ज्यादा हो रहा है, आपका सरफेस के ऊपर पानी हो गया, सो ये पानी धीरे धीरे नीचे जाता है, वो आपका डिटोरेट करता है आपका बिटुमिन को। बिटुमिन क्या होता है? ये बिटुमिन मींस वो जो ब्लैक टॉप जो होता है, अलकतरा उसको ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, वो इफेक्ट करेगा। फिर आपका 2-3 लेयर्स ऑफ एग्रीगेट्स आर देयर, बेस है, सब बेस है। सब बेस थोड़ा सा पुअर क्वालिटी का मटेरियल्स होता है, उसको और ज़्यादा इफेक्ट करता है। अल्टीमेटली देखो सब ग्रेड भी होता है। तो क्या होता है, एक रोड जब कंस्ट्रक्शन होता है, उसका जो स्ट्रेस लेने का जो एबिलिटी है, वो एबिलिटी डिटोरेट हो जाता है। सो धीरे धीरे क्रैक डेवलप हो जाता है। वो क्रैक अल्टीमेटली जब continuously developed, so that becomes the potholes. So yeah, one of the reason is that in India we don't have the strict monitoring system during the constructions. After constructions we have the problem with the repairing systems and maintenance systems. Because landslide हुआ, अगर हम properly उस जगह का drainage को clear cut नहीं करेंगे तो पानी स्टोरेज होगा, पानी स्टोरेज होगा तो अल्टीमेटली ये इफेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली वाटर, जब पानी को अगर हम मैंने उसका फ्लो को सही चैनल बनाएगा तो आधा प्रॉब्लम तो उधर ही सॉल्व। यस, अदर प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व। अगर हम प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे, बारिश हुआ, हम अगर चेक करेंगे कि उस रोड में पानी स्टोरेज हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, उसको क्लियर करेंगे, आधा पोटोल्स का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ओके, तो बेसिकली ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है ईटानगर के लिए? यस, इट इज सॉल्व। आपने 2 प्रॉब्लम बताया, एक तो पानी स्टोरेज का बात बताया। लेट्स नॉट गो देयर कि वो इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं, लेट्स अज्यूम कि सब कुछ अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ। तो पानी का ड्रेनेज सिस्टम बना देना, सिस्टम पे अगर हम बहुत ही अच्छे से हम प्रॉपर्ली बनाएंगे एंड फिर पीरियोडिक मेंटेनेंस उसमें करेंगे। और दूसरा है कि जो ओवरलोडेड ट्रक को अलाउ नहीं करेंगे, बस तब कुछ नहीं होगा, तब पोटल्स का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली हुआ तो हाँ, वो तो सबसे में अगर इंफीरियर क्वालिटी का मटेरियल अगर यूज नहीं हुआ तो नो डाउट इट विल सॉल्व at a large extent, it will solve the problem. But if you go to the developed country, they have proper monitoring system, they have proper maintenance systems are there.
सो आप लोगों को मिलेगा कि वहाँ पे फोटोज नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत बेसिकली इवन इन ऑल दिस डेवलप्ड कंट्रीज करप्शन तो वहाँ भी होता है. वो भी पता होगा. नहीं, डेफिनेटली. Okay, let us not say We that. will not talk about the country. Oh, no, फिर भी my point is, let's say वहाँ पे भी 100% properly 100% to the T implement नहीं हुआ है. Implement नहीं हुआ. थोड़ा सा इधर उधर हुआ है. फिर भी बिकॉज वहाँ का मेंटेनेंस, ड्रेनेज सिस्टम एंड द जो गाड़ी का जो लोड लोड का जो रेस्ट्रिक्शन है हाँ. वेरी क्योंकि वहाँ का लीगल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है. बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए रास्ता खराब नहीं होता है. आपने साउथ कोरिया का एग्जांपल लिया हो, रोड सर्विस नॉट आउट एरियाज. अरे oh my god. हाँ, तो वहाँ पे लीगल सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है कि लोग उसका अवॉइड नहीं. In fact, I'll tell you, my first abroad visit was Sultanate of Oman. वो मेरा पहला था. South Korea would be my sixth or something. तो ओमान में जब मुझे कोई प्रोफेसर ऑफ सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी पिक करने आया था, तो ही केम पिक मी अप फ्रॉम द एयरपोर्ट एंड देन वो जल्दबाजी में वहाँ से निकल गया. निकलने के बाद ही सडनली गॉट नर्वस. आई आस्क्ड हिम, सर क्या हुआ? उसने बोला कि एक पर्टिकुलर जगह पे उसको स्पीड कम करना था बिकॉज इन द एक्साइटमेंट इंडिया से कोई आया है, क्योंकि ही वाज एन इंडियन. इंडिया से कोई आया, बोलकर जल्दबाजी में निकल गया एंड तुरंतली उसका एसएमएस आ गया, फाइन लग गया. अब मैं बोला तो आपको तो देखा नहीं, फाइन को वो कैसे ये करेगा, आपसे कलेक्ट करेगा? वो बोला कि जब तक मैं फाइन नहीं दूंगा तब तक मेरा जो सिटीजनशिप स्कोर होता है ना, वो रिकवर, मतलब व्हाटएवर इट्स ब्लैक डॉट लगता है, डाउन हो जाता है, तो फाइन देना ही पड़ता है. एंड सो सी कोई पीपल नहीं था वहाँ में चेक करने के लिए स्पीड आया कि नहीं. इट इज टेक्नोलॉजी दैट वाज डूइंग इट. आई वाज सो इम्प्रेस्ड सर, सीरियसली आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड. नाउ दिस थिंग्स आर आल्सो गेटिंग इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया आल्सो. अभी मेरे को भी एक दिन फाइन हुआ. एक इंडिया में होता ही है. हाँ, लखीमपुर रोड से जा रहा था बाईपास से. हाँ, तो मुझे मालूम नहीं हमें स्पीड लिमिट की 70 करके रखा. नहीं लेकिन who caught you? नहीं, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था. अच्छा, that पे ये मतलब मूवेबल कैमरा था, व्हीकल कैमरा था. मैंने देखा नहीं, मालूम नहीं, मुझे भी मालूम नहीं था कि उस रोड में 70 किलोमीटर लिमिट है. आई वाज ड्राइविंग विद 80 किलोमीटर पर आवर. मैंने इवनिंग को सडनली देखा, एक मैसेज आया. ठीक है, क्या मैसेज है? 2100 या 2200 का फाइन है. चलो भाई, मैंने सोचा कुछ उसमें करने का जरूरत नहीं है, पैसा दे दो. मैंने पैसा दे दिया. फिर उसके बाद मेरे पास रिसीट जनरेट हुआ, उसमें मैंने देखा कि आई वाज ड्राइविंग विद 81 किलोमीटर पर आवर. Oh, this is so good. This is so good. I didn't think India would be implementing this because normally यहाँ पे जो भी monitoring system होता है वो human being करते हैं. उससे क्या हुआ, नेक्स्ट दिन जब मैंने रिटर्न आ रहा था वहाँ से, आई वाज वेरी मच कॉशियस कि नहीं, स्पीड मुझे 70 का ऊपर जाना नहीं है. सो दैट्स अ लेसन फॉर मी आल्सो कि हाँ ठीक है, एक बार फाइन दिया लेकिन मैं थोड़ा सा अलर्ट हो गया कि भाई 70 का ऊपर स्पीड जाना है. एंड दैट इज सेफ्टी फॉर ऑल. See, machines को आप ये मॉनिटर करने रख देगा ना, तो machines don't lie. तो वो तो ह्यूमन बींग्स में तो प्रॉब्लम होता है, इसके प्रॉब्लम्स होता है. ट्रैफिक इश्यूज, उसको झूठ बोल देंगे, कुछ भी करेंगे. तो दैट्स वेरी गुड. सो अगेन व्हेन आई टॉक अबाउट सिविल कंस्ट्रक्शन, कुछ बिल्डिंग्स इतना ऊंचा होता है, स्काई स्क्रैपर्स जिसको कहते हैं, सिविल इंजीनियर से बनाते हैं ना. आई मीन हाउ डू यू एसरटेन कि वो गिरेगा ही नहीं, और गिरता भी नहीं है एक्चुअली. मतलब अर्थक्वेक्स आता है बट सर्टेन बिल्डिंग्स दे डोंट क्रैश एंड कोलैप्स. जब भी हम कोई बिल्डिंग्स को लेते हैं, उसमें एक तो है कि एवरी कंट्रीज दे हैव देयर प्रॉपर बिल्डिंग कोड. बिल्डिंग व्हाट? बिल्डिंग कोड. दे हैव सम प्रॉपर गाइडलाइंस आर देयर. आप कैसे डिजाइन करेंगे. Okay. भाई जब हम स्काई पेपर का बात करते हैं, सो वी नीड ए स्पेशल गाइडलाइंस. उसमें हमको कैसे डिजाइन करना है. सो डिजाइन स्टार्ट फ्रॉम द सॉइल इटसेल्फ. हमको प्रॉपर सॉइल टेस्टिंग करना पड़ता है सबसे पहले. सॉइल टेस्टिंग का ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा फाउंडेशंस कैसा होगा. फिर फाउंडेशंस का ऊपर हमारा लोड कैसा आ रहा है, वो लोड को डिजाइन करना पड़ता है. उस लोड का ऊपर डिपेंड करेगा हमको कितना रेनफोर्समेंट चाहिए, जो बीम्स कॉलम उसका डायमेंशंस कैसा आएगा, इसको सो बेस्ड ऑन दैट डिजाइन, दैट load conditions and the soil properties, civil engineers need to design a building. तो सोइल देखना जरूरी है. सोइल का डिफरेंट प्रॉपर्टीज चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आपको फाउंडेशन लोड नहीं मिलेगा. अगर मुझे किसी 4 स्टोरी बिल्डिंग बनाना है तब भी सोइल देखना जरूरी है. यस, इवन इफ यू डिजाइन ए सिंगल स्टोरी बिल्डिंग आल्सो, अगर आपका सोइल वहाँ का खराब है तो आपका बिल्डिंग खराब होने का चांसेस बहुत. सर मोस्टली इंडिया में तो मिस्त्री लोग बनाते हैं. मिस्त्री लोग, वी आर नॉट इंजीनियर्स. नॉट इंजीनियर. तो एक्चुअली अगर आप म्यूनिसिपैलिटी में जाओगे तो वहाँ का एक रूल्स होता है कि आपको कोई एम्पेनल इंजीनियर से आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा आपका ड्राइंग. तो ड्राइंग सर्टिफाई करने के लिए कैसे सर्टिफाई करेगा, उसको चाहिए डिज़ाइन.
जो डिजाइनर जब डिजाइन करेगा वो कैसा डिजाइन करेगा, उसको चाहिए सॉइल इंफॉर्मेशन एज वेल एज द लोड प्रॉपर्टीज, कितना लोड उस स्ट्रक्चर में आने वाला है। एक तो हो गया कि स्ट्रक्चर का लोड इटसेल्फ, इन एडिशन टू दैट हमको चाहिए लाइव लोड, कितना लाइव लोड आने वाला है उसमें। लाइव लोड मतलब लाइव लोड में तो सपोज जो लोग वहाँ में आना जाना कर रहा है उसका लोड कितना है। इसके बाद आएगा आपका अर्थक्वेक आने का पॉसिबिलिटी है, सपोज हम कौन सा जोन में उसका ऊपर डिपेंड करके, फिर विंड लोड, सो अगर स्नो एरिया होगा तो उसका भी लोड। सो ऑल दिस थिंग्स हमें कंसिडर करना पड़ेगा। फिर कंसिडर करके तब अगर हम जो प्रॉपरली डिजाइन करेंगे तो वो डिजाइन बिल्डिंग्स का लाइफ 50 to 100 से सबको सस्टेन करेगा। अगर हम कुछ भी कंसिडर नहीं करेंगे, हम जैसा आप बोला कि वो तो मिस्त्री बनाता है, हम मिस्त्री को दे दिया, तो आप एग्जाम्पल लीजिए, मिस्त्री को देने वाला जो बिल्डिंग है, कितना बिल्डिंग है जो 100 ईयर्स सस्टेन किया, और उसी सेम जगह में और एक बिल्डिंग देखिए जो प्रॉपर डिजाइन हुए, प्रॉपर चेक होके, प्रॉपर मटेरियल से बनाया गया, उसका लाइफ कितना है। डेफिनेटली यू विल फाइंड दैट एटलीस्ट 1/3 जो मिस्त्री बनाया है, अगर उस जगह में किसी रीजन से सपोज एक बिल्डिंग का लाइफ 60 ईयर्स होता है, तो जो मिस्त्री बनाया होगा 20 to 25 ईयर्स से ज़्यादा सस्टेन करेगा ही नहीं। कोई ना कोई रीजन से तो उसमें प्रॉब्लम्स आएगा, क्रैक आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, सेटलमेंट का प्रॉब्लम्स आएगा, सॉइल सेटलमेंट, वो कुछ ना कुछ इश्यूज आएगा। अब जब हम स्काई स्केपर का बात करता है, बुर्ज खलीफा टाइप्स, we need again the precise design, उसमें precise टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट्स है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू अगेन प्रॉपर फाउंडेशंस का जरूरत है। अब ऐसा नहीं है कि अब जितना ऊपर में जाएंगे उसी हिसाब से उतना बड़ा फाउंडेशन होगा, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि क्योंकि एक्चुअली तामरूल्स का हिसाब से 1/3 आपका फाउंडेशन का मिट्टी का नीचे देना पड़ता है, जस्ट एज एन लेमन आइडिया, 1/3 देना पड़ता है। अभी हमारा 10 स्टोरी बिल्डिंग होगा तो हम 3 स्टोरी तो नीचे नहीं देंगे ना फाउंडेशन। बुर्ज खलीफा अगर तो उसमें प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज करके हम फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाते हैं, एंड उससे इसी हिसाब से फिर हम आगे का स्ट्रक्चर्स को डेवलप करते हैं। सर in during earthquake some buildings they just sway, मतलब साइनसॉइडल वो में sway करता है और गिरता नहीं है। आगे का नहीं है, देखिए वो एक हमारा अर्थक्वेक गाइडलाइंस दिया हुआ है, गाइडलाइंस में करता है डक्टिलिटी। सो हमारा जो जॉइंट होता है, जॉइंट को हम ऐसा डिजाइन करता है कि जॉइंट मूवमेंट हो सकते हैं। सो वो जो रेनफोर्समेंट रहता है ना, रेनफोर्स को ऐसा डिजाइन करके हम ज्वाइन करते हैं वहाँ पे कि वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होता है, तो लिटिल बिट फ्लेक्सिबल होता है। एज वेल एज जो फाउंडेशंस होता है, फाउंडेशंस में हम ऐसा स्प्रिंग टाइप का डिजाइन करते हैं ताकि बहुत बड़ा अर्थक्वेक आएगा तो वो स्प्रिंग टाइप का मूवमेंट होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, वो स्ट्रक्चर से कोलैप्स नहीं होता है, जस्ट मूवमेंट होता है फाउंडेशंस एंड ऑल जो डिजाइन करें। जो बैंकॉक का सबसे ऊंचा बिल्डिंग है महानखन टावर, वो आई मीन आई सॉ बिकॉज आई वाज देयर इन द स्काई वॉक, उसको देखा, आई थॉट वो तो पूरा कोलैप्स हो जाएगा, बट इट वाज जस्ट मूविंग लाइक बहुत टाइम तक। वही तो मतलब फाउंडेशंस को तो स्प्रिंग टाइप ऑफ सिस्टम्स, डैम्पनिंग एब्जॉर्ब करने के लिए सिस्टम्स बनाया गया, सो दैट जब कोई टाइप ऑफ शेकिंग्स आएगा, कुछ आएगा तो एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड आई हैड वन मोर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये जब स्वे करता है ना तो साइनसॉइडल वेव है ना, वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को कैंसिल करता है। मतलब अगर एक लेट्स से कि पॉजिटिव ज्यादा होगा तो फिर भी चांसेस है कि उसे लोड लगेगा। तो इस तरीके से बनाया होता होगा साइड हाइट को, ऐसे ही बनाया है कि दोनों को न्यूट्रलाइज करके बैलेंस करता है। बदल इतना छोटा छोटा बिल्डिंग्स लोग कोलैप्स हो रहा है। लेकिन नाम से अब मिस्त्री बनाया बोला, हाँ वही ना, वो मिस्त्री बनाएगा तो उसको मालूम नहीं होता है कि फाउंडेशन में ये स्प्रिंग टाइप ऑफ डैम्पनिंग सिस्टम, जो शॉक आएगा, शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या सिस्टम देना है, दे डू नॉट नो। और जनरली क्या होता है, सपोज एक 1 स्टोरी बिल्डिंग या 2 स्टोरी बिल्डिंग होता है तो हम उतना केयर भी नहीं करते। इवन दो आई एम सिविल इंजीनियर आल्सो, मैं भी शायद उतना केयर नहीं करूंगा अगर 1 स्टोरी 2 स्टोरी बिल्डिंग होगा, चलो बना लो। दैट इज व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड। लेकिन अगर बहुत ज्यादा उसका टॉल स्ट्रक्चर होगा, so no doubt one has to think about that कि how we can absorb the shock wave that coming from the earthquake। वही जो लास्ट अर्थक्वेक हुआ था, अनफॉर्चुनेट अर्थक्वेक जो साउथ एशिया में हुआ था, उसमें इफ यू हैव सीन म्यांमार में और थाईलैंड में बड़ा बिल्डिंग बच गया एंड थोड़ा बिल्डिंग वो गिर गया, खत्म होते गया। दिस इज प्योर साइंस ओनली, नो सिविल इंजीनियरिंग। बड़ा बिल्डिंग में आपने से टेक केयर किया होगा, कैसा आपको फाउंडेशंस को कैसा डेवलप करना है, कैसा अगर बड़ा अर्थक्वेक आ गया तो उसको शॉक्स को कैसे एब्जॉर्ब करना है, ऑल दिस वाज इम्प्लीमेंटेड देयर। बट छोटे बिल्डिंग में जैसा हम उतना केयर नहीं करते है तो बना लिया तो इफेक्ट हो गया छोटा बिल्डिंग में। तो सर तो सिमिलर
concept or philosophy would go for construction on bridges as well, right? Bridge. तो थोड़ा और 2 मिनट बताइए, ब्रिज में कंस्ट्रक्शन करने के लिए सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा? एक तो है कि जब हम ब्रिज डिजाइन करते हैं, सबसे पहले उसका डेड लोड आएगा, मतलब Dead ब्रिज load- का सेल्फ स्ट्रक्चर, ओके, स्ट्रक्चर्स का उसका एक वेट आएगा। उसके एडिशंस में क्या है कि व्हीकल, कितना व्हीकल जा रहा है, उसका एक लाइव लोड आता है। ठीक है, पकड़ लीजिए कि किसी ऐसा एक दिन आया कि फुल ब्रिज का ऊपर लोडेड ट्रक गया, तो उसका मैक्सिमम कितना लोड आएगा, दैट हैज टू बी कंसीडर। उसके ऊपर हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करते हैं, इवन दो कुछ रीजन से और कुछ एक्स्ट्रा लोड आ गया वहाँ पे, फिर भी उसको स्ट्रक्चर को सस्टेन करना। तो फैक्टर ऑफ सिविल इंजीनियर जनरली मोस्ट केसेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि फील्ड में हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या होता है, हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो लोड अगर पकड़ लीजिए आपका 100 टन का होना चाहिए था, तो हम लोड लेंगे 150 टन। हम 150 टन के लिए डिजाइन करेंगे। किसी किसी केस में हम अर्थक्वेक का इफेक्ट है तो उससे ज़्यादा भी लेते हैं। अर्थक्वेक हम एज्यूम करते हैं कि जितना आने वाला है इफेक्ट होने वाला है, उससे ज़्यादा अगर आएगा तो क्या इफेक्ट होना है। सो ये पूरा लोड लेके हम डिज़ाइन करते हैं। अभी क्या होता है कि रोड में आपका एक्सपेंशन जॉइंट्स रहेगा, कभी कभी क्या है टेम्परेचर हाई होने से लोड में मूवमेंट, जैसा आपने बोला अर्थक्वेक आने से क्या है बिल्डिंग में स्वे होता है, सिमिलरली ब्रिज में भी होता है। तो उसके लिए हम बेयरिंग यूज करते हैं। फ्लेक्स आपका एक पायर और उसका डेक का बीच में आप देखिए व्हील टाइप का लगा होता है, सो बेयरिंग होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए on. हाँ वो फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट होने के लिए है। तो प्लस हम जो वाटर है, पानी आ रहा है, उसका भी क्या इफेक्ट हो रहा है उसको हम ले रहे हैं। इन एडिशन टू दैट हम अर्थक्वेक का इफेक्ट ले रहा है, जो हवा आ रहा है विंड का जो इफेक्ट है, ये सब कंसिडर करके टेक्निकली हम डिजाइन करते हैं ब्रिज को। आफ्टर दैट जब डिजाइन को कंस्ट्रक्शन होता है उस टाइम में भी प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जाता है। रोड में हो सकता है कभी कभी क्या होता है मॉनिटरिंग में कॉम्प्रोमाइज होता है, उससे 1000 किलोमीटर रोड से आपको कंस्ट्रक्शन करना है, उसमें से ब्रिज आपका कितना आएगा, हार्डली सब पकड़ लीजिए 10 ब्रिज आएगा, 10 ब्रिज का डिस्टेंस कितना होगा। तो उस जगह में क्या होता है प्रॉपर मॉनिटरिंग। अन्य सबको मालूम है कि ब्रिज में अगर छोटा कुछ हो जाएगा तो बड़ा मतलब कैटास्ट्रोफिक हो सकता है, तो इसलिए ब्रिज में ज़्यादा मॉनिटरिंग होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है एक ब्रिज सस्टेन करता है, लॉन्ग टाइम सस्टेन करता है। तो- लेकिन सेम जगह में उसी कॉन्ट्रेक्टर से या उसी एजेंसी को आप दो रोड का बाकी पार्ट बनने के लिए आपको फोटोज डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर्स, तो ब्रिज इज कंसिडर मोर क्रिटिकल. मोर क्रिटिकल। ऑलराइट सर, आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द सिविल पब्लिक स्ट्रक्चर्स आपने बताया, इसका अलावा सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या डोमेनल सब्जेक्ट होता है, क्या क्या और सब्जेक्ट्स है? मतलब आप इफ यू हैव टू क्लासिफाई सिविल इंजीनियरिंग इन डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, Different one is understood, it is your traffic engineering, one is the transportation engineering, and then आएगा structural engineering, that we are discussing right now. this is discussing. Then आपका आएगा water resource engineering, जो specifically defined water systems को लेके जो काम करते हैं, Irrigation, the irrigation, canals, flood control, flood control, dams, वो सब लेके Dam. करते। तो आ गया water resource engineering। वो भी कंस्ट्रक्शन ही को करता है ना? कंस्ट्रक्शन नहीं करता है बट उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किस हिसाब से कैसा प्रॉपर, सपोज मुझे आप पूछोगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर को कि ये हमें फ्लड होगा तो कैसा वाटर फ्लो होगा, क्या होगा उसका पैट, शायद मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं। जैसा आप अगर एक स्पेशलिस्ट वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का फैकल्टीज को पूछोगे या स्पेशलिस्ट इंजीनियर्स को पूछोगे वो इतना मोर डिटेल्स उसमें बता पाएंगे। ठीक है, दे आर स्पेशलिस्ट ऑन दैट एरिया। देन आपका आएगा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वो क्या होता है? ऑल दिस वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंटल का क्वालिटी मेंटेनेंस एंड ऑल दोस थिंग्स के लिए जो इंजीनियर्स काम करते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियर। सपोज मैं समझा नहीं सर, एनवायरमेंट इंजीनियर क्या पढ़ा? एनवायरमेंटल इंजीनियर बेसिकली सपोज वाटर, आपका घर में वाटर रहता है, हाँ, उस वाटर का क्वालिटी मेंटेन हो रहा है क्या नहीं, अच्छा, वो चेकिंग कौन करता है, जो सिविल इंजीनियर्स करता है। उस वाटर को सप्लाई करने के लिए जो सिस्टम डेवलप करना है वो कौन करता है, वो एनवायरमेंटल इंजीनियर करता है। ठीक है, आपको कैनल चाहिए, फिर आके रिजर्वायर सिस्टम चाहिए, वो वाटर रिसोर्स में नहीं है आपने जो बोला? नहीं वो वाटर रिसोर्स में नहीं आएगा, दैट्स अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। वाटर रिसोर्स में आएगा सपोज रिवर से वाटर फ्लो हो रहा है, तो वो रिवर वाटर फ्लो को कैसा मैनेज करना है, और रिवर बेड को कैसा मैनेज करना है। फिर वहाँ से सपोज हमें कैनल कंस्ट्रक्ट करके हम अपना खेती में पानी लाना चाहते हैं तो उसमें कैसा होगा। ठीक है, फिर आपका सरफेस में वाटर का क्या सिस्टम से, तो नेटवर्किंग ऑफ वाटर इज बाय द वाटर रिसोर्स, वाटर बट द क्वालिटी ऑफ वाटर इज बाय environmental engineering.
And then not only the quality of water, environmental pollution and all those things. इसमें गार्बेज वर्बेज आएगा क्या? Garbage, all these things. गार्बेज मैनेजमेंट उनका अंदर आता गार्बेज मैनेजमेंट भी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंडर में आता है. है. प्लस जो एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है वो भी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का अंडर में आता है. तो क्या क्या मैंने बताया. अच्छा, नेक्स्ट हो गया आपका जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, which mainly deals with the soil part, सॉरी ओके. the different properties of the soil. उसमें अगर कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो उसका डिजाइन कैसा करना है, फाउंडेशन का किस टाइप का डिजाइन करना है, सिंपली सॉइल रिलेटेड डिजाइन कैसा करना है, उसमें दे यूज्ड टू डू. ठीक है. देन और एक आएगा आपका बिल्डिंग साइंस. बिल्डिंग साइंस, बिल्डिंग साइंस कंस्ट्रक्शन में नहीं आ रहा वो. वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी हम बोल सकते स्ट्रक्चरल जो बोला था हैं. स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी है और एक है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड बिल्डिंग साइंस. दिस इज आल्सो पार्ट. वो भी क्या होता है, मेनली बिल्डिंग को रिलेटेड टू द बिल्डिंग्स. वो कैसे डिजाइन करना. बाय बिल्डिंग यू मीन जो लोग जहाँ पे रहते हैं, हाँ, रेसिडेंशियल. रेसिडेंशियल बिल्डिंग. यस, बिल्डिंग साइंस इज मेनली रेसिडेंशियल बिल्डिंग. उसमें कैसा सिस्टम होना चाहिए, उसका एस्थेटिक पॉइंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स दे डिजाइन ऑन दैट पार्ट्स. So these are the different types of specialization in civil engineering. What about energy? Energy is somewhat comes under environmental engineering. It's directly not coming in civil engineering. Okay. Energy science is something not exactly included in the civil engineering. Then some remote sensing and all these things that are also coming under the civil engineering. And GPS concept. GPS concept that also basically it's the implementation part. Yes. 3D printing ये आता है आपका होता है. 3D printings. There are some building structures Building structure. built through 3D. Basically what we do in 3D is buildings, because we have machines developed. In machines, whatever the suppose material required, say I want to construct a small wall. Yes, so in machines, whatever the requirements of the ingredient requires, that will give it, and it will automatically construct on wall, and it will give a print. Like suppose in a paper, I want to print some writing. So what we do in a printer, we put a paper and then it will print it. Okay. All the required ingredient we are giving to the printer. The machines we have, and then we have a printer kind of thing, and that will produce that wall. Rather than printing the paper, we are producing the wall. इस टाइप का कॉन्सेप्ट में वो काम. ये तो अभी नया है ना. इट्स अ न्यू. वो तो ओल्ड स्कूल नहीं है, पुराना नहीं, क्लासिकल नहीं है. ये नया है और ये इंडिया में आजकल पायलट बेसिस में इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है. बेंगलोर, चेन्नई में इसको इम्प्लीमेंट करके देंगे. ये बेसिकली क्या है, आपको रैपिड कंस्ट्रक्शन चाहिए तो उस केस में, और एफोर्डेबल हाउस में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आपका कम होगा, क्योंकि फील्ड में आपको उतना नहीं, जस्ट आपको कैरी करना है वो मटेरियल को और आपको हमें फिट करना है. जैसे चाइना सुनते हैं ना, 10 दिन 15 दिन में एक बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया. कैसे बनाते हैं उनको? बस प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स है, वो जस्ट उठा के लेके जाता है और हमें फिट करते हैं. वो फिट करने में जितना दिन चाहिए उतना दिन है, बाकी सब ऑलरेडी बना के रखा हुआ है. इवन वो कॉलम भी बना के रखा है, उसको बीम भी बना के रखा है, वॉल भी बना के रखा है, जस्ट उठा के जाके फिक्स कर देते हैं. Is it guaranteed कि वो lasting होगा? Yes, compared to the classical buildings that we make. हाँ, तो डिजाइन का हिसाब से बना रहे ना. आपको डिजाइन का हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से वो प्रिंट करेगा. The material तो फिर भी तो like it is it the same material? Yes, same material will be used. Oh, same material है. Yes. अब तब तो काम करेगा. डिजाइन सेम है, मटेरियल सेम है, बस लगाने का तरीका अलग. ओनली थिंग इज दैट वहाँ में बहुत ज्यादा क्वालिटी मेंटेन होगा. हाँ, क्योंकि आपको सपोज जो एग्रीगेट जो शेप का जो क्वालिटी का चाहिए आप उसी को ही देना पड़ेगा. आप दूसरा शेप का दूसरा क्वालिटी का दे देंगे तो फिर दैट मशीन में नॉट वर्क. ठीक है. सर इफ आई अगेन, जैसे मैंने आपको बैंगलोर का मेयर बना दिया था. इन इंडिया इफ यू हैड टू चूज वन सिटी एंड यू थिंक यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, आपको क्या लगता है कौन सा सिटी को शायद से विद ऑल योर माइंड पुट देयर आप कुछ कर पाओगे? नेक्स्ट से I don't know if it's a good question to ask. I understand. You're okay with that? Yes, I do. Suppose if we talk about the cities, different cities has different problems. Right. Now, if you just look in India, some metro cities, if you go to Delhi, several problems are there. Every years, every moment we get in news that there is this problem, that problem. What problem? What are those problems? One is the pollution problem. Then water logging problem. फ्लड आया पूरा दिल्ली में, फ्लड में भरा हुआ. दिल्ली से ज़्यादा मुंबई होता है. मुंबई में भी होता है, दिल्ली में भी होता है.
सो अगर कोई मुझे पूछेंगे कि आप कौन सी सिटी को डेवलप करना चाहिए, मैं तो आई चूज दिल्ली फर्स्ट। वाई? बिकॉज दिल्ली में एक तो है कि पोल्यूशन प्रॉब्लम्स है, सेकेंड प्रॉब्लम्स है कि वहाँ का जो बिल्डिंग्स है वो बिल्डिंग्स दे आर नॉट एक्चुअली यूनिफॉर्मली डिजाइन। What do you mean? मीन कि किसी जगह में आपका स्काई केपर भी है, किसी जगह में आपका स्लम एरिया भी है, बहुत सारा मिक्स्ड काइंड ऑफ थिंग्स है। ऐसा सही नहीं है क्या ये? नहीं, उससे क्या हो रहा है कि आपका जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन तो आपको इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे ना सिटी में, तो एक तो है। फिर आपका रोड नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कंजेशन इतना ज़्यादा क्यों होता है? एक तो रोड नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपको बस व्हीकल ज़्यादा है, आप नेटवर्क प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं किया। सो वो सब अगर आप कंसिडर करेंगे, सो आई विल थिंक दैट दिल्ली विल बी द बेस्ट चॉइस कि आपको दिल्ली को फिर दोबारा स्पेस से स्टार्ट करो, कंसिडरिंग ऑल दोज प्रॉब्लम्स। आपका वाटर प्रॉब्लम्स, क्राइसिस है, पोल्यूशन प्रॉब्लम्स, रोड नेटवर्क प्रॉब्लम, रेसिडेंशियल एरिया प्रॉब्लम, all these problems you have to first design properly depending on the population staying in that city, and then you have to plan it and implement it properly. Okay, planning and networking is important of that. ठीक है, तो let me quickly review whatever have I understood. You started by saying that civil engineering should be called the mother of engineers because with the start of civilization, civil engineering has started. Yes. And those people who built civilization, they were unknown that they were doing engineering, but they were civil engineers. All right. Then I ask you again कि आप क्या करते हैं? आपने बोला ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग से अभी ट्रैफिक इंजीनियरिंग करते हैं. And then I again question you that transport or traffic engineering doesn't sound like me. So doesn't sound to me like उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, because in the mind we made this opinion कि civil engineering is construction. Then you said कि कंस्ट्रक्शन नहीं चलने से भी तो सिविल सोसाइटी को चलाने के लिए ट्रैफिक तो होता है, लॉजिस्टिक्स के लिए तो उसका मैनेजमेंट के लिए होता है. तो लाइकवाइज आई अंडरस्टूड दैट इवन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में या एनर्जी कॉन्टेक्स्ट ये सब भी आ सकता है. मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक कि सिविल इंजीनियरिंग एक छोटा सा ब्रांच नहीं है, आप बहुत कुछ कवर कर रहा है. बहुत कुछ, lot of things are there in civil engineering. It's not like just making one laptops or computer. It's a wide, और ये एक ऐसा ब्रांच है कि हम कुछ भी बनाएं, लेकिन हमको एक सिविल इंजीनियरिंग का एक स्ट्रक्चर चाहिए जहाँ में हमारा मटेरियल्स को रखना पड़ेगा, सेफ्टी के लिए मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर चाहिए. आई मे बी ए CEO ऑफ ए कंपनी, अगर मुझे जाना है यहाँ से किसी और एक दूसरे सिटी में, I need a structure from civil engineers. Then only I can move. Otherwise, it is even if you talk about flights also, aircraft also cannot move without the help of the civil engineers. Why? Because we need the runway. Who is making the runway? Civil engineers. So civil engineers there in everywhere, in every corner of any country, any society, and it has a lot of contribution to our economy also. If you talk about India, around 8 to 9% GDP is coming from the construction itself. Please tell me about it. मुझे इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आता. कंस्ट्रक्शन GDP का 8 to 9% हमारा कंस्ट्रक्शन से ही आता है. प्लस मोर देन 50 million people are working in civil engineering related fields in India. So it's a huge contribution for any country. In India also it's a huge contribution from the civil engineering. So suppose if somebody said that no, civil engineer will not work for few days or few months, what will happen? वो मेरा सवाल यही होना था कि फॉर सम टाइम अगर सिविल इंजीनियर्स काम करना बंद कर देगा तो देश का क्या होगा? एवरीवेयर देयर विल बी प्रॉब्लम इन द लाइफ, स्टार्टिंग फ्रॉम मूवमेंट्स, क्योंकि हमारा मूवमेंट्स बंद हो जाएगा. क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि रोड्स बनाया है सिविल इंजीनियर्स, अगर वर्क करना स्टॉप कर देंगे तो उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? मेंटेनेंस नहीं होगा तो ऐसे ही पॉट होल्स, इट विल बिकम बिग पॉट होल्स. ब्रिजेस अगर मेंटेनेंस नहीं होगा तो कोलैप्स होने का चांसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट बंद हो जाएगा. सेकेंड प्रॉब्लम हमारा वाटर क्राइसिस आएगा, क्योंकि जो भी वाटर नेटवर्क डेवलप किया गया है उसको अगर आप मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो हमारे घर में पानी नहीं आएगा. हमारे घर में पानी नहीं आएगा तो हमारा डेली लाइफ में इशू आएगा, डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगा. देन वी कैनॉट गो टू आवर ऑफिस, वी कैनॉट कंप्लीट आवर जॉब प्रॉपरली. फिर आपका इरिगेशन का प्रॉब्लम्स आएगा, पानी का प्रॉब्लम. सो इफ यू टॉक अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू the development of any society, where the contribution of civil engineers will stop, and then everything will become a chaos system. The nation will be stuck off because the workforce, as I said, that in India we have more than 50 million people are working. If they become unemployed, then what will happen to the society? So a society will be
in a standstill position, it will say that civil engineer stops working for a few months or a year. I got your point, but आपने जो बोला कुछ GDP यहाँ से आता है, what do you mean actually? मतलब how do we contribute in money making? क्योंकि हम कंस्ट्रक्शंस करते हैं, हम मतलब Indian सिविल company. इंजीनियर्स. Do you mean the Indian companies? यस, इंडियन कंपनीज. हाँ. आप इंडियन कंपनीज लीजिए, इंडियन गवर्नमेंट लीजिए, वी आर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, हाँ. वी आर कंस्ट्रक्टिंग ब्रिजेस. हाँ. ठीक है, वो बिल्डिंग या ब्रिज जो कंस्ट्रक्शंस करते हैं, हाँ. एक तो हो गया कि आपका जो रियल एस्टेट से, रियल एस्टेट जो स्पेसिफिकली बिल्डिंग्स, बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स बनाते हैं और सेल करते हैं, उनका एक अर्निंग आएगा. Okay. वहाँ से आपका Tax. क्या इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूशन आता है. हाँ. सेकंड है, सपोज हमने हमारा एक जगह में एक ब्रिज का जरूरत है, सपोज पकड़ लीजिए आपका दैट बोगीबिल ब्रिज. व्हेन इट वाज नॉट देयर, क्या करते थे, पूरा तेजपुर होके घूम के हम जाते थे आपका डिब्रूगढ़ या तेजपुर का वो साइड. I was a junior engineer in Longding, ओके, and it So- took me almost 18 hours to reach there. रीच देयर. सो देयर वाज अ ह्यूज लॉस, क्योंकि एक्स्ट्रा पेट्रोल जाता है, एक्स्ट्रा एनर्जी लॉस होता है, एंड लोगों का टाइम बर्बाद होता है. तो अभी जब इस तरफ गया है तो एक प्रॉफिट आया लोगों को, क्योंकि ब्रिज यहाँ पे बन गया. सो दैट इज कंट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमी, क्योंकि लोगों का जब जाना आसान होता है तो Okay. पैसा सेव होता है, टाइम सेव होता है, मतलब पैसे सेव होता है. Okay, correct. So savings are coming. That year, once the construction is occurring, and then in addition to that, I said employment, and more than 50 million people are working for construction field. You can say civil engineering field means construction field. And they are paying taxes. They are paying taxes, so that is getting used. Okay. Because वो मतलब एक पर्सन का घर में पैसा आ रहा है, मतलब हमारा कंट्री में भी पैसा आ रहा है ना. हाँ. We are a part of that. So उसी हिसाब से वो कंट्री का इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है. Okay. तो अब मेरा सवाल थोड़ा हटके होगा. What temperament of yours changed or grew when you became civil engineer? मतलब और ढंग से पूछता हूँ, मतलब एक सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का दिमाग में क्या चेंजेस आता है, चीज को देखने का तरीका, पर्सपेक्टिव किस तरीके से बदल जाता है? जब हम समझा ना आपने क्या? समझ गया मैं. जब हम बचपन में देखते थे कि घर बना रहा है, रास्ता बना रहा है, आपने जैसा बोला शुरुआत में तो मिस्त्री बनाता है, हम भी वही सोचते थे, अच्छा वो रास्ता बना रहा है, वो तो कोई कॉन्ट्रैक्टर आया होगा और उसके 2-4 लेबर है साथ में, वो लोग बना रहे हैं, वो तो ऐसा ही कहीं से मिट्टी पत्थर उठा के डाल दिया होगा. सेम आइडिया वाज इन अदर कंस्ट्रक्शन से जो भी हम देखते थे. जब बाद में इवन आफ्टर क्लास 9-10 ऑल्सो दैट रियलाइजेशन वाज नॉट कमिंग, क्योंकि आप खुद नहीं जा रहे. जब बाद में जब हम सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में पढ़ने आया, जब धीरे धीरे पता चला कि सिविल इंजीनियरिंग हैज ऑल दिस कंपोनेंट्स, जो स्ट्रक्चर्स का या कंस्ट्रक्शंस हम देख रहे हैं डेली लाइफ में, ऑल दिस कंपोनेंट्स आर कमिंग अंडर सिविल इंजीनियरिंग. एंड ये सब कंपोनेंट्स में जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिफोर दैट वी नीड ए प्रॉपर डिजाइन. एक प्रॉपर डिजाइन होना चाहिए, तभी उसका लाइफ सस्टेन होगा, तभी एक इकोनॉमिकल डिजाइन होगा. मीन्स आप अननेसेसरी एक्सपेंडिचर भी नहीं करोगे. तब पता चला कि नहीं, सिविल इंजीनियरिंग इज समथिंग different than what or the construction life is something different that what we were thinking earlier. So अभी मैं सोचता हूँ कि constructions मतलब we need a proper design, we need a proper technical knowledge on that, then only we should go for the constructions of any components. Otherwise it will be a collapse. It will collapse soon. मतलब बहुत जल्दी खराब हो जाएगा. उसमें आपका अपने एक्सपेंडिचर तो वही होगा. सपोज एक बिल्डिंग बनाने के लिए आपको आज का दिन में से पकड़ लीजिए 15 लाख चाहिए. आपने अगर उसमें उस बिल्डिंग को एक प्रॉपर टेक्निकल डिजाइनर से आप उसको डिजाइन कराओगे और एक टेक्निकल पर्सन से उसको मॉनिटर करोगे ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, आपका कितना होगा? और मैक्सिमम 1 लाख एक्स्ट्रा जाएगा. उस 1 लाख के लिए आपका जो बिल्डिंग का लाइफ है कम से कम 15% बढ़ जाएगा, एटलीस्ट 50%, इवन मोर देन दैट. सो उस केस में द थिंकिंग की अर्लियर जो थिंकिंग था कि हम कुछ भी करके फील्ड में बना सकते हैं क्वेश्चन, दैट हैज चेंज. I understand. The civil engineering, so like, okay, let me put it. आपने फिर when your mind has shifted to see things differently now, why have you not
chosen to be in the industry? Rather, why have you become an academician? मतलब उसमें आपका implementation करने का जगह ही नहीं है. ये क्वेश्चंस का आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आई वाज इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आल्सो. आई वाज इन द इंडस्ट्री आल्सो फॉर 1.5 year एंड आई हैव टेकन द टेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सपीरियंस. उसमें क्या होता है कि आपको कभी कभी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जल्दी होता है See, फ्रॉम द. ये टाइम बाउंड काम करने का चीज तो मेरा हिसाब से shouldn't be. सुनिए मैं बताता हूँ. तो आपको कभी कभी होगा कि रात को भी 2 बजे 3 बजे आप जाग के वर्क कर रहे हो कंस्ट्रक्शन फील्ड में. सो दैट इज वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज दोज हु आर मेनली वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड. आपको रात को होल नाइट भी वर्क करना पड़ता है, कभी कभी 24 आवर्स भी वर्क करना पड़ता है. सो दैट समटाइम्स क्रिएटेड नेगेटिव टू द सिविल इंजीनियर्स. बट आई नॉट से दैट कि ओनली बिकॉज ऑफ दैट आप कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज में होता है. जो लोग फील्ड में वर्क करते हैं इनिशियल स्टेज में आपको वर्क प्रेशर के कभी कभी रात को होल नाइट वर्क करना पड़ेगा. बट जब आप 3-4 years का सीनियर हो जाओगे वहाँ पे, देन यू नीड नॉट टू गो टू द फील्ड. दैट इज वन थिंग. नाउ व्हाई आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम देयर टू द एकेडमिशियन, क्योंकि मुझे जो सिविल इंजीनियरिंग का जितना मैंने सीखा, मुझे लगा कि आई नीड टू नो मोर अबाउट इन ए पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, सपोज MBBS किया तो आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानते हो. जैसा मैंने सिविल इंजीनियरिंग बीटेक किया तो आई नीड a little bit about all the components. But if I want to know more about any component, then I need to go for higher study. तो मुझे पर्पस क्या है, जान के क्या करोगे? If you cannot implement, आप जान के तो इम्प्लीमेंट करना है. तो where will you implement? You are I'll tell. अब जब जानोगे then only you can implement it. Yeah. मुझे लगा कि नहीं, I have to go for master degree. तो मैंने मास्टर डिग्री करने गया. तो मेरा चॉइस था कि आइदर स्ट्रक्चर्स और ट्रांसपोर्टेशन. I'll go for मास्टर डिग्री क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था दोनों सब्जेक्ट्स में. तो ठीक है, मुझे सेकंड चॉइस था कि सेकंड क्राइटेरिया मेरा था कि नहीं, मुझे IIT में मास्टर डिग्री करना है. तो मुझे नियरेस्ट IIT गुवाहाटी में मुझे ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा था, तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन में ज्वाइन किया. मास्टर डिग्री जब ज्वाइन किया तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर स्टिल नॉट डिस्कवर्ड, स्टिल नॉट आइडेंटिफाइड. बिकॉज हम अगर जब रोड में जाता है, इतना सारा कंजेशन होता है, इतना सारा डिले होता है, या सपोज एक रोड कंस्ट्रक्शन हुआ, उसमें क्या हो रहा है रोड में, कभी कभी क्या होता है, इवन आफ्टर डूइंग एवरीथिंग प्रॉपर आल्सो स्टिल द रोड इज फेलिंग. दैट मीन्स वी हैव सम प्रॉब्लम इन द डिजाइन आल्सो, वी हैव सम प्रॉब्लम इन द इम्प्लीमेंटेशन आल्सो और द प्लानिंग पार्ट आल्सो. सो अगर आप उस एरिया को एड्रेस करना चाहते हैं, देन यू नीड सम मोर नॉलेज ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया. तो मैंने PhD ज्वाइन किया. अब PhD ज्वाइन करके आप बोलोगे कि आप तो कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे. PhD ज्वाइन करके आई एम डूइंग सम रिसर्च. दैट रिसर्च वंस इट बिकम फ्रूटफुल, दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द फील्ड. You will not implement it. I will not implement it, but not necessary that कि सम आइंस्टाइन ने जो थ्योरी बनाया वो आइंस्टाइन ही सिर्फ इम्प्लीमेंट करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं ना. सपोज हमने कुछ एक मेथोडोलॉजी या कुछ एक सिस्टम डेवलप किया जो एग्जिस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव कर सकता है, एफिशिएंट बना सकता है, देन नो डाउट दैट सिस्टम विल बी इम्प्लीमेंटेड. It will be implemented by the executive agency, and that's your contribution. Yes. कि आपने वो implementation methodology दिया है, science दिया है, Yes. नया science. Yes. You put it in a very right context actually. क्योंकि मुझे भी बहुत लोग पूछता है ये सवाल. I don't know what to say. कि why have you chosen academics when you could have implemented whatever knowledge you had in the industry? उसमें वही होता है कि whatever knowledge in the theory is developed, that we are implementing. But academician में we are trying to develop a new theory also sometimes. That's correct. Okay. That's So that will be implemented in futures, and that theory will be more efficient. Because we will try to develop something better than what existing. that is because it's first of all it's peer reviewed. Peer review. The people experts from this community they check your research and say ये बेकार है या अच्छा है. It is science if not peer reviewed, it's not science. It's not science. Because science is repeatable, it's reproducible, it is timeless. Yes. एक भी अगर 100 लोगों ने अगर उसको एग्री किया है, peer review किया है, जिसमें से लेकिन एक ने भी मना करे तो वो बेकार हो गया. वो बेकार, क्योंकि 100 versus 1 उसमें डेमोक्रेसी नहीं चलता. एक ने भी प्रूफ कर दिया गलत है, ये गलत है तो गलत है, चाहे 1000 भी बोलो ये सही है. नहीं बोला गलत.
That is the beauty of science. कभी कभी क्या होता है हमारे पास जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है हम उसको भी चेक करता है वो सचमुच एफिशिएंटली काम कर रहा है या नहीं कर रहा हम लोग जो बिल्डअप करते हैं किसी सिस्टम पे तो करता है. है Whatever we do, it's कभी कभी हमको ये भी मिलता है कि नहीं जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है दैट इज बेटर देन व्हाट वी आर थिंकिंग दैट आल्सो ए वे ऑफ कंट्रीब्यूशन correct. नहीं दिस इज फाइन We reinforce यस the existing system कि ये सही है बोल के. सही We validate it. we will take it so that way it is contributing okay not necessary कि आप फील्ड में जाके ही पत्थर कैसा डाल रहा है उसको देखना पड़ेगा नहीं आप थियोरेटिकली डेवलप करके दीजिए एंड दैट विल आल्सो बी implemented in futures not today may not be today tomorrow it will be implemented somehow Alright, when you say that कि रात भर काम करना पड़ता है क्योंकि टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होता है, so what should be the right kind of ethics a civil engineers should follow? क्योंकि actually में ये सब टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स होता है. At times टाइम बाउंड टाइम में खत्म करने का चक्कर में कॉम्प्रोमाइज होता है. And so I don't know. I'm एज ए सिविल इंजीनियर हमको डिजाइन में क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए दैट इज आवर एथिक्स ऑफ सिविल इंजीनियर्स कि हम क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे डिजाइन में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं. अब क्वेश्चन है कि कभी कभी हमारे पास टाइम कम होता है वर्क जल्दी करना पड़ता है उस केस में हमको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है वी नीड एक्स्ट्रा वर्क फोर्स जो वर्क करता है ठीक है. अभी कोई अगर एजेंसी है जो सोचेगा नहीं मुझे भाई 100 रुपीज़ का वर्क से आई कैन स्पेंड ओनली 50 रुपीज़ तो उस केस में क्या होता है क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है क्योंकि वो तो उससे ज़्यादा स्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है. बट एज एन एजेंसी एज एन सिविल इंजीनियर्स जब सिविल इंजीनियर विल बी देयर ही कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी क्योंकि दैट इज योर एथिक्स फर्स्ट एथिक्स इज दैट यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी. आप क्वालिटी मिनिमम कॉम्प्रोमाइज करके आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा फोर्स लाना पड़ेगा एक्स्ट्रा मशीन्स लाना पड़ेगा एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लाना पड़ेगा आपको वर्क करने के लिए. अभी उसके बावजूद भी कुछ कुछ ऐसा वर्क होता है इवन इफ यू हैव एक्स्ट्रा फोर्स ऑल्सो स्टिल यू कैन नॉट डू दैट वर्क बिकॉज सम वर्क है जिसमें हमको मिनिमम इतना टाइम गैप देना पड़ता है. आपने एक कंस्ट्रक्शन आज किया कल सुबह आके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते यू नीड टू गिव ए मिनिमम टाइम टू सेटल इट टू गेट इट हार्डन सो वो टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा. आप पॉलिटिशियंस हो या कोई भी हो प्रेशर देगा civil engineer cannot compromise on that. that is because there is science. Yeah, that is science. You cannot fight science. Yeah, उसमें हम compromise नहीं कर सकते. So we are almost about to hit 1 hour. So Is it? yeah. Oh, hi. तो आप मेरा व्यूअर्स को कैमरा में देखिए. I mean, मैं चाहूँगा कि आप उनको मोटिवेट कीजिए समझाइए सिविल इंजीनियरिंग क्यों पढ़ना चाहिए in the right context. Yes, correct. सबसे पहले क्या है कि आपको फील होगा कि अरे भाई हम क्यों रात भर वर्क करेंगे हैं क्यों सिविल इंजीनियरिंग जाए जहाँ पे हमको एक आईटी एक कंपनी में ज्वाइन करूँगा कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स में करके हमको एक ग्लैमरस जॉब मिलेगा ऐसा नहीं है. सिविल इंजीनियरिंग इज ऑल्सो ग्लैमरस. फर्स्ट यू थिंक इन ए डिफरेंट वे नाउ यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग पर्सपेक्टिव्स अबाउट द सिविल इंजीनियरिंग देखिए यू आर द मेकर ऑफ द नेशन. आप एज ए सिविल इंजीनियर्स एक नेशन को बिल्ड कर रहा है. जब कोई कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जाके दूसरा कंट्री में पहले बताएंगे पहले क्या बताएंगे दे विल टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री और उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन किसका है सबसे पहला कंट्रीब्यूशन है सिविल इंजीनियर्स का. तो एज ए सिविल इंजीनियर्स यू शुड बी प्राउड फॉर दैट कि हाँ यस आप एक कंट्री का डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. एंड सेकेंड थिंग कि आप सिविल इंजीनियरिंग अगर करोगे दोज हु आर थिंकिंग कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है yes you have the opportunity for the government jobs. You can start from your junior engineer assistant engineer then executive engineer then chief engineers. You think about if you become an executive engineer or chief engineers in future so who will be more glamorous IT company software engineers or you they will come to you for their defined work to be implemented by you. So that way it is no doubt it is a glamorous job. Plus, initial stage, you may feel that you are getting less salary than an engineer. But if you work in a multinational company, if you work in a bigger projects, then no doubt your salary will be also higher in future. But not today. I cannot say that as a fresher you will get high salary. No, you will not get the high salary. But if you work for 5 years, 10 years in a good companies, in a good projects, then no doubt your salary will be comparable with the engineers. And secondly, you think engineers, whatever they are developing, that is sustaining only for 10 years or 12 years maximum. If you just think about this mobile phone, what is its life? Its guarantee is only for 1 year.
and you must say that it will sustain maximum 4 to 5 years. You think about a laptop. Its guarantee is only for 1 year or extendable to 3 years, but its life is only maximum you will get in the 10 years. You just think about a building, think about a bridge, whatever you are constructing, it is you can give a guarantee if there's 70 to 80 years it will sustain. So which one will give you more satisfaction? At 10 years work that you have done, or you have done a work which is sustaining for 70 to 100 years. So think that way. So your perspective should be, in a thinking perspective should be in a different way. Then only you will find that yes, civil engineering is a glamorous job and you are building the nation. Thank you, sir. I will beep that word in IT engineering because I don't want to offend the students who are there. Don't worry, but this your message to my audience will be put there. And rightly, if I have to compare again, you started by saying civil engineering is a nation building. Builders of the nation. The builders of the nation. Even you ended up saying that. You mentioned our honorable Prime Minister and said that when you say developed India, it means the infrastructure of India. First is the infrastructure, and who is developing that infrastructure? Civil engineer. And I should be proud for that. And everything else comes to support an infrastructure. Yes. That could involve us mechanical engineers. That could involve. IT and everything, electronics, everything is required. We cannot say that civil engineers is alone. But we Need everything. that's there to support Yes. for God. Please. Thank you, sir. I think I got what I wanted from you. I hope this will give us some idea about the civil engineering. I have understood civil engineering. Yeah. At least in Audience also will not say that कि हाँ civil engineering तो बहुत ही खराब है, जो last होता है वही civil engineering जाता है. ऐसा नहीं है. Civil engineering में बहुत ज़्यादा स्कोप है. आप जब एक कंट्री के लिए काम करोगे, then आपका thinking, आपका feelings will be different than others. That's it. Thank you, sir. Thank you for calling. Thank you. Brilliant.